Hello students, welcome you all back. Today is the festival of I would say Indian ladies who keep it for their married spouses. Today is Karwa Chauth. A very happy Karwa Chauth to all of you. Today, because I have a holiday, I thought I would do the recording today. It would be easier for me because I get lot of time at home today. So today first I am going to cover the lesson number 6 on the pace of it. Okay, now those who have already done the lesson, it is a long lesson and it is a play actually featuring an old man who is called Mr. Lamb, and there is a small boy in this lesson who is um, Derry. Okay, and what is common in both of them is that they both suffer from some disability. Now, this Mr. Lamb is an old man and he has a lame leg. He has, in fact, he lost his leg in World War and he has a tin leg. And then you have Derry, who has half of his face is burnt, and that is not burnt because of cracker, but that is an acid attack. Because of some acid attack, half of his face skin, the skin was burnt. So both of them have are suffering from some disability, and the boy Derry, who is very young, who is a teenager, he feels smitten by this fact that half of his face is so ugly that people don't want to look at him. He doesn't have friends, he cannot go out with people, he doesn't socialize, uh, he is being derided by people, he is being criticized for his face. When people look at him, when women look at him, they all make fun of him, and he's so smitten by this fact, so taken by this fact, that he does not want to value what he has. I mean, he has two limbs, two hands, two legs, his entire body is fine, he doesn't have any implants, but then too he feels that just because my half face is burnt because of acid, I do not have normal skin, I have a disability, and I should hide somewhere, and I should not go out because people make fun of me. Now, when this boy Derry, he meets Mr. Lamb in his garden, in Mr. Lamb's garden, in his courtyard, the garden which was there outside his house. Then it is Mr. Lamb who counsels him and who gives him this example that he himself has a tin leg, he has a tin implant in his leg, and he himself is disabled. And then too, this does not deter him from doing his daily chores or doing his activities or socializing and going out and meeting people. So he is the one who counsels him and motivates him towards the end to be his normal self and accept his disability or accept this disfigurement. It is not even a disability, it is just a disfigurement, right? Accept himself as he is, as God has willed, as God has made him, and he should live his life fully rather than being unnecessarily disheartened, feeling disheartened because of this small प्रॉब्लम. ओके, तो चलिए करते हैं इस लेसन को. जैसा मैंने बताया कि इसमें एक मिस्टर लैम्ब होते हैं. मिस्टर लैम्ब जो होते हैं उनका एक घर होता है, और वो घर जो होते हैं उसमें कर्टन्स भी नहीं होते हैं. उसकी जो विंडोज़ होती हैं उस पर कर्टन्स नहीं होते हैं. वो बोलते हैं कि आई डोंट लाइक कर्टन्स. एंड उनका जो घर होता है ऐसा लगता है कि वीरान है, डेसोलेट है, कोई उसमें रहता नहीं है. बट जो मिस्टर लैम थे वो अकेले ही उस घर में रहते थे. और उनके घर के बाहर जो गार्डन होता है उसमें एप्पल ऑर्चर्ड होता है, उसमें एप्पल्स के ट्री होते हैं बहुत सारे. और उस गार्डन के अंदर अक्सर मिस्टर लैम जो है वो बैठते होते हैं. अब अचानक से क्या होता है, ये जो डेरी होता है वो इज़ अ टीनेजर 14 years old. ही कम्स, वो जो है छत टाप करके उसके अंदर आ जाता है गार्डन के अंदर. और एक आई वुड से बेंच होता है, उस बेंच के ऊपर वो बैठ जाता है. और अचानक से उसको मिस्टर लैम जो कम अक्रॉस करते हैं, मतलब मिलते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, तो वो स्टार्टल हो जाता है, चौंक जाता है और वो छुपने लगता है. मतलब बिकॉज ऑफ हिज फेस, फर्स्ट ही वांट्स टू हाइड हिज डिसफिगर्ड फेस. तो वो छुपने लगता है. तो मिस्टर लैम जो है उससे बैठते हैं और बात करते हैं और उसको समझाते हैं. वो कहता है नहीं, तुम मुझे देखकर डर जाओगे, मुझे तुमसे डर नहीं लगता. तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? वो कहता है मुझे पता है, बिकॉज व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट भी जाता हूँ और कोई लेडीज़ भी मुझे दूर से भी देखती हैं तो बोलती हैं देखो कितना गंदा फेस है इसका, और देखो ये कितना डरावना बच्चा है और इसको तो कोई प्यार नहीं कर सकता सिवाय इसकी माँ के. तो इसकी माँ ही इसको किस कर सकती है. और वो बोलता है कि ये सच है कि मेरी माँ ही मुझे किस करती है, एंड दैट टू ऑन माई फोरहेड. मेरे माथे पे मेरी मदर मुझे किस करती हैं. और उसके अलावा आई डोंट थिंक आई कैन एवर गेट एनी गर्ल्स, आई कैन मेक एनी फ्रेंड्स, या मैं कभी सोशलाइज कर पाऊँगा या मैं कभी फ्रेंड्स बना पाऊँगा, मुझे नहीं लगता ऐसा, राइट.
तो उसके बाद मिस्टर लैम जो होते हैं उसको समझाते हैं कि अच्छा फिर ऐसा करो, अगर तुम सारी दुनिया से छुपना चाहते हो, फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते, सोशलाइज नहीं करना चाहते, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपने घर में ही एक कमरे में बंद हो जाओ। क्योंकि ऐसा ही एक लड़का था, उन्होंने देन ही गिव्स हिम एन एग्जाम्पल, ही सेज ऐसा ही एक लड़का था, वो दुनिया से छुपता छुपाता अपने कमरे में बैठता था, उसको ये लगता था मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे साथ कोई अनफॉर्चुनेट घटना हो जाएगी, मेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा, मुझे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुम ऐसा करो, वो अपने घर में जो था वो बंद हो गया, लेकिन उसके घर के अंदर ही जो थी एक फ़ोटो जो थी, एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी, वो पोर्ट्रेट गिरी और वो पोर्ट्रेट जो थी उसके सर पे गिरती है उस बच्चे के, और वो जो है बच्चे की डेथ हो जाती है घर के अंदर, कमरे के अंदर। तो वो बोलता है अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है उसकी तरह, उस बच्चे की तरह, तो तुम भी अपने कमरे में बंद हो जाओ, लेकिन अगर कोई हादसा होना हुआ, कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ होनी हुई और डेथ जो है वो कमरे के अंदर भी आ जाती है, एंड यू कैन ऑल्सो डू इट, यू कैन लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड नेवर कम आउट, राइट। तो उसके बाद डेरी को थोड़ा बहुत समझ आता है कि नहीं, आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स, आई शुड नॉट बी सो introvert, I should not feel miserable just because of some problem which is there on my skin and on my face, so it is not that big। उसके बाद जो है मिस्टर लैम उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, मैं यहाँ बैठता हूँ, दूसरे लोग आते हैं, मुझसे मिलते हैं, जुलते हैं, मैं सोशलाइज करता हूँ। कहता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि आपसे कोई सोशलाइज करता है या आपसे कोई मिलता है, बिकॉज आई एम द वन हु कम्स हियर, मुझे यहाँ तो कोई भी नहीं था व्हेन आई केम। उसने कहा देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो वो दरवाज़ा है गार्डन का, वो खुला हुआ है, यू कैन गो फ्रॉम दैर, यू कैन गो बैक, और फिर तुम दोबारा आ सकते हो। बता हाँ, मुझे अपनी, अगर मुझे आना हुआ दोबारा तो मुझे घर जाके मॉम को बताना होगा, आई विल हैव टू इन्फॉर्म माई मॉम, अपनी मम्मी को मुझे बताना होगा, एंड देन उनको इन्फॉर्म करके आई कैन कम बैक। तो वो बोलता है ठीक है, तुम जाओ और जा करके अपनी माँ को बता करके आ जाओ, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें मतलब यही दो तीन घटनाएं होती हैं, जिसमें एक तो फेस वाली है, एक लेग वाली। वो मिस्टर लैम उसको बताते हैं कि देखो मेरी लेग जो है लंगड़ी है, तो मुझे तो लोग लंगड़ा लैम मतलब लेमी लैम बोलते हैं, ये बोल करके पुकारते हैं। एंड देन टू आई डोंट फील डिसअपॉइंटेड, वो बोलते हैं मुझे उसके बावजूद बुरा नहीं लगता है, और ना है ओके, मतलब ठीक है, आई हैव दिस प्रॉब्लम and I have accepted it as it is and I don't run away from my problem। मैं इससे भागता नहीं हूँ, और मुझे I have accepted it, इसी तरह तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारी बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, तुम्हारा पूरा शरीर ठीक है, इट इज़ जस्ट स्मॉल फेस, राइट, सिर्फ फेस पे थोड़ा सा ही तुम्हें प्रॉब्लम है, तो आई डोंट थिंक तुम्हें इतना अफेक्ट होना चाहिए। तो वो बच्चा थोड़ा बहुत उस बात से मोटिवेट होता है, समझता है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद वो बोलता है कि डेरी डेरी जो है एक बार उनको ये भी बोलता है कि मुझे एक बंदे ने एक बार ये भी कहा कि लंगड़ों को लंगड़ों के साथ होना चाहिए, ब्लाइंड जो होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, उनको उनके साथ ही, मतलब जो अंधा है उसको अंधों के साथ होना चाहिए, और जो मतलब जिसको सुनता नहीं है, बहरा है, और डेफ को डेफ के साथ रहना चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए, नॉट कि हमारे जैसे लोगों को, नॉर्मल लोगों के साथ ना उठना बैठना नहीं चाहिए, सोशलाइज नहीं करना चाहिए। तो लैम ने उससे पूछा कि वो किस तरह की दुनिया होगी, जिस तरह की दुनिया तुम बोल रहे हो, कि मतलब अंधे जो है वो अंधों के साथ रहे, विजुअली इम्पेयर्ड शुड बी विद विजुअली इम्पेयर्ड, एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप जो लंगड़े हैं, चलने में असक्षम हैं, वो उनके अपने जैसों के साथ रहें, तो वो किस तरह की दुनिया होगी, तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत अजीब दुनिया होगी, राइट। तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ, मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसको समझाता है कि तुम्हें इन चीज़ों से हेट नहीं करनी चाहिए, गॉड हैज़ क्रिएटेड देम एज दे आर, एंड दे आर ऑल्सो देयर टू enjoy their life on earth, and you should not judge them just because of one disfigurement or one disability। there are other skills, they are specially differently abled। अगर उनकी एबिलिटी नहीं है तो उनमें बहुत सारी और एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है डेरी को मोटिवेशन फील होती है, डेरी को समझ आता है, एंड देन डेरी गोज बैक टू हिज मॉम, एंड देन अपनी मॉम को बताता है कि आई वांट टू गो टू मिस्टर लैम्स गार्डन एंड हिज हाउस। और उसकी मॉम उसको मना करती है, नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ पे। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर एंड हेल्प हिम विद दिस ट्रीज़। वो जो है एप्पल जो है वो तोड़ेंगे और उसका जो है वो मार्मलेड बनाएंगे, जैम बनाएंगे,
उसकी जो है कैंडीज़ वो बनाते हैं, तो आई वांट टू गो बैक एंड हेल्प हिम बाय पिकिंग अप द एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स फ्रॉम हिज गार्डन। तो पहले उसकी माँ उनको मना करती है टेरी को कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बट टेरी जो है वो सुनता नहीं है माँ की बात, और माँ के मना करने के बावजूद जो है वो भागता भागता चला जाता है वापस गार्डन की तरफ मिस्टर लैम के। एंड वो भाग करके जब जब तक लेकिन वो मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पर जो लैडर होती है, सीढ़ी होती है, जिस पर चढ़कर मिस्टर लैम जो थे एप्पल्स तोड़ते थे, पिक करते थे, वो नीचे गिरी हुई होती है, और मिस्टर लैम भी नीचे ही गिरे हुए होते हैं गार्डन में, अनकॉन्शियस होते हैं वो। और फिर जो है वो उनको होश में लाने की कोशिश करता है। वो बोलता है उठो उठो, देखो मिस्टर लैम, देखो मैं आया हूँ, तुम्हारी टिन की लेग है, मेरा फेस ख़राब है, बट मेरी टांग में टिन नहीं है, लेकिन आई हैव कम बैक, मैं वापस आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, और अगर आप नहीं उठोगे तो मैं फिर तुम्हारे से कभी मिलने नहीं आऊँगा, सो गेट अप प्लीज़, गेट अप एंड टॉक टू मी। बट देन मिस्टर लैम जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। सो देयर द प्ले एंड्स, राइट। And he says, Mr. Lamb, I have come back only for you. I did come back. You see, I came back. But then, he doesn't respond. So there this play ends. And after that, we will follow up with the questions. इसमें देखिए जो क्वेश्चन है इसमें एक तो ये है कि इस प्ले के अंदर जो मिस्टर लैम्ब हैं, ही डिस्प्लेज साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा कौन सा सेक्शन है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग। तो इसमें आपको बताना है दैट ही डज सोशलाइज विद द चाइल्ड डेरी, वो उसके साथ सोशलाइज करते हैं, उसको समझाते हैं कि एक डिसफिगरमेंट से जो है पूरी दुनिया नहीं ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड मेरी भी टांग में टिन का इम्प्लांट है, एंड आई हैव एक्सेप्टेड माई डिसेबिलिटी एज इट इज़, और मैं सोशलाइज करता हूँ, बाहर आता हूँ, कैंडीज़ बनाता हूँ, बच्चे आते हैं, मैं उनको रोकता नहीं हूँ, जो भी मुझसे मिलने आता है आई नेवर स्टॉप देम, आई ऑलवेज मीट देम एंड वेलकम देम ऑल। और डिसअपॉइंटमेंट एंड लोनलीनेस जो है वो शुरू में बताते हैं कि भाई वो बताते हैं कि मैं जो है कैंडीज़ देता हूँ बच्चों को, एप्पल जो है क्रैब एप्पल जो फॉल करते हैं उनको लेता हूँ, आई डोंट आई लव टू टॉक, आई लव कंपनी, बट एक्चुअली ही डजंट हैव कंपनी। देन ही सेज दैट आई हैव अ बी हाइव ओवर देयर, ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, दे कीप सिंगिंग, एंड मुझे ऐसा लगता है दे आर नॉट हमिंग बट दे आर सिंगिंग, और मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती है। और वो बताता है कि आई सिट एंड रीड बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन माई हाउस, and he says that I do not have curtains, and I like the light, and I like the wind, and that's why my windows are open, and that's why my garden is also open, anybody can come। तो उसे पता चलता है कि he doesn't have a family and he wants to welcome people from the outside world, all right। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है कि जो डेरी है, विल ही गेट बैक टू द ओल्ड सेक्लूजन, और विल मिस्टर लैम्ब ब्रीफ एसोसिएशन ब्रिंग अ चेंज। तो क्या इसके बाद मतलब डेरी जो है वो बदल जाएगा, या वापस वही अकेले रहना और अपने मतलब लाइक इंट्रोवर्ट हो जाना, और ऐसी मनोस्थिति में, डिप्रेशन वाली मनोस्थिति में लोगों से कटना एंड नॉट मीटिंग देम, क्या वो उसमें वापस चला जाएगा। तो आई थिंक यू कैन टेक अ स्टैंड ऑन दिस, इट ऑल डिपेंड ऑन यू, बट अगर मतलब इन माई ओपिनियन, अगैन यू हैव टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन इन माई ओपिनियन एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। तो आप कहेंगे इन माई ओपिनियन नो, डेरी will not go back to his old self, he will not become isolated and lonely. In fact, Mr. Lamb's association has brought a change in him, and he went to inform his mother and came back, अपनी मम्मी को बता के वो वापस आता है, to help him and to face the life as it is, right। तो he has accepted that reality and he wants to face that reality, ठीक है। So after this he doesn't want to shun away from reality, and he doesn't want to feel secluded, and he wants to mix up and be in the real world along with Mr. Lamb. He wanted to help him, so I think he will not go
बैक टू हिज डिप्रेस्ड सेल्फ। जैसे वो पहले डिप्रेस था, अकेले रहना चाहता था, सेक्लूडेड रहना चाहता था, आइसोलेटेड रहना चाहता था, अब वो नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर नाम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने डेरी को उनकी तरफ अट्रैक्ट किया। तो वन वाज लाइक दैट सिंपथी दैट मिस्टर लाम हैड फॉर हिम। सेकंड वाज द सिमिलैरिटी, जब वो बताते हैं उसको कि मतलब मेरे भी डिसेबिलिटी है, तेरी तो सिर्फ डिसफिगरमेंट है थोड़ी सी बिकॉज ऑफ द एसिड एंड एसिड अटैक, आई हैव अ डिसेबिलिटी, आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट रन मच, राइट, एटलीस्ट यू कैन वॉक, यू कैन रन, यू कैन डू थिंग्स विच आई कैन नॉट। फेस से आपकी कोई चीज़ रुक नहीं रही है, आपकी एबिलिटी कोई कम नहीं हो रही, इट इज जस्ट दैट यू डू नॉट लुक वेरी हैंडसम। बस तुम शाहरुख खान नहीं दिखते हो, तुम सिर्फ ऋतिक रोशन नहीं दिखते हो, बट देन यू कैन डू एवरीथिंग, राइट, जस्ट बिकॉज यू हैव सम प्रॉब्लम ऑन योर फेस। तो these are the questions. I think you all have understood it well. अगर इसके बाद भी आपका कोई doubt है about the lesson, you can get back to me and we can discuss it in the class. Fine. Thank you so much. Have a good day.